Good evening to everybody. In the last lecture, we started the professional skill, and on some skill we try to discuss and we try to understand what kind of the skill we can acquire as a library professional, as a librarian, as a library researcher, as a library student. Okay, and up to this we have been discuss leading skill and value, personality, and then perceptions and attitude. Up to this we have been discussed. So this has been finished in the last lecture. Now we are going to discuss on planning skill. Okay, so when we are working in the organization, any kind of organization, so there is first thing is come in front of us as a manager, planning. Because when we play role as a librarian, library professional in the library, then we play role as a manager of library, right? So library is also called manager of library. So what is the first duty of librarian? To manage all kinds of the things which are acquired in the library. So which kind of the thing is which kind of the things are acquired by the librarian in the libraries? So there are certain function of library like cataloging, classification, acquisition, processing, reference, periodical, circulation. So all these operation should be managed by the librarian as a managers. So in this way librarian play important role as a supervisor to supervise all kinds of the functions. So one of the best function is played by the librarian there to make the plan of library. Okay, so if we are take example of any kinds of organization, if we are take example of company, there is a manager. If we are take example of bank, there is a manager. If we are take example of school, college, university, there is a one chief person. Okay, so he manage all these things, so that is why it is called the manager of each and every organization. Okay, so in our own language, in our own interpretation, we can say here that those who are the in charge of organization, those who are president of organization, those who are chief of organization, those who are owner of organization, he play role as a manager. Okay, if even he is a owner but he play another role is as a managers. भले ही हम उस कंपनी के, उस संस्था के मालिक क्यों ना हो, लेकिन मालिक को एज अ मैनेजर करके रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजर के सभी जो स्किल होते हैं वह जो कंपनी के ओनर होते हैं उसमें होना जरूरी होता है, तभी वह अच्छी तरह से संस्था चला सकता है. बिकॉज एज बीइंग ओनर he play role as a manager, and he will manage all kinds of the things which are going on in the organization. सभी प्रकार की जो चीज़ें, बातें, कार्य, फंक्शन जो संस्था में होते हैं वो सभी प्रकार के कार्य, फंक्शन को एज मैनेजर करके मैनेज करना पड़ता है. तो मैनेजर के सभी जो स्किल होते हैं वह संस्था चालक
कोई भी हो उसमें होना ज़रूरी है, या संस्था जो चला रहा है एज अ मैनेजर इंचार्ज करके उसमें भी होना ज़रूरी होता है। ओके, so as a part of management process, will you attempt to define the future state of your organization? So when we do the management in our organization, it will decide the future direction of organization. जब हम संस्था में मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी संस्था का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी उस पर निर्भर होता है। वर्तमान में भले ही कंपनी संस्था अच्छी तरह से क्यों न चल रही हो, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होगा तो भविष्य में भी संस्था अच्छी तरह से चलती है, राइट। लेकिन मैनेजमेंट यदि गलत होता है, मैनेजमेंट में कुछ गलतियां होती है, तो फिर डिसीजन मेकिंग में कुछ गलतियां होती है, तो वर्तमान में भी कंपनी अच्छी तरह से नहीं चलती, भविष्य तो दूर की बात है। तो वर्तमान में ही वह कंपनी कोलैप्स हो जाती है, वर्तमान में ही वह कंपनी घाटे में चली जाती है, या इट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग फंक्शन, इट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग द प्लानिंग, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कोलैप्स। तो ये कोलैप्स हो जाती है, कभी कभी उसको बंद भी करना पड़ता है, घाटे में चलती है तो। ओके, लेकिन इस सभी प्रकार की जो संस्था है इसके बारे में हमने यहाँ पर राय प्रकट की। लेकिन जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी में किस तरह का मैनेजमेंट किया जाता है और ये मैनेजमेंट कौन करता है और इसका किस पर असर होता है और मैनेजमेंट के पीछे लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य होता है, ये सभी प्रकार के सवाल हमारे सामने आते हैं और इन सभी प्रकार के सवालों का जवाब हम यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। जब लाइब्रेरी के बारे में मैनेजमेंट किया जाता है तो लाइब्रेरी इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर डूइंग द मैनेजमेंट इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में मैनेजमेंट करने का जो अधिकार होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह लाइब्रेरियन की होती है, बिकॉज लाइब्रेरी इंचार्ज ऑफ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का एक मोटो होता है, गोल होता है, टू सर्व द यूजर्स विदाउट एनी hurdle, without any barrier, and it is the main purpose to save the time of users, time, energy of users and money of users. This is the ultimate goal of any kinds of library. तो उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन क्या करता है, यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं और किस तरह से उन्हें यूजर को इफेक्टिव सर्विस प्रदान कर सकते हैं, इस पर लाइब्रेरियन का भर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन मैनेजमेंट करता है लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी के पीछे क्या पर्पज होता है, तो लाइब्रेरी इज नॉट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइब्रेरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इसके लिए बेनिफिट कमाना या पैसा कमाना लाइब्रेरी का उद्देश्य नहीं है। फिर भी मैनेजमेंट क्यों पॉसिबल है, जब उद्देश्य ही पैसा कमाना नहीं है तो फिर मैनेजमेंट करके क्या फ़ायदा, ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। भले ही कोई भी संस्था कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, दोनों में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। यदि संस्था को चलाना है, संस्था को रन करना है, तो विदाउट मैनेजमेंट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो किसी भी प्रकार की संस्था को विदाउट मैनेजमेंट हम चला नहीं सकते, इफेक्टिवली रन नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, राइट। तो इस तरह से हम लाइब्रेरी के बारे में मैनेजमेंट का विचार यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इन द सेंस टू मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स, to manage all kinds of the function which are going in the library.
but rather to uncover things in the present to ensure that organization does not future, hence planning skill will include. ओके, तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लानिंग का होना कितना जरूरी होता है। ओके, और यदि हमने प्लानिंग नहीं की तो क्या नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, यदि भर समंदर में बहुत सारी दुविधाएं हैं, वहाँ पर एक स्टॉर्म आया है समंदर में और नाव पे बहुत सारे लोग हैं और उसमें कैप्टन ही नहीं, ऐसी सिचुएशन जब होती है तब क्या हो सकता है। तब नाव कभी भी सही दिशा में नहीं जाएगी और जो लोग उसमें बैठे हैं उसकी जान नहीं बच पाएगी। यह उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि नाव को यदि कैप्टन नहीं है, चलाने वाला नहीं है, दिशा देने वाला नहीं है, तो नाव की क्या हालत हो सकती है। जैसी लहर आएगी समंदर में, उस दिशा में नाव चलती जाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं किस दिशा में वो नाव जा रही है और सभी इनसिक्योर वहाँ पर फील करेंगे। तो इस तरह से नाव की अवस्था हो सकती है विदाउट कैप्टन। तो उस तरह से यदि किसी भी संस्था में मैनेजर नहीं है और मैनेजमेंट नहीं है तो फिर वह संस्था की हालत उस नाव की तरह हो सकती है। जहाँ से लहर आती है वहाँ वो संस्था चली जाती है और फिर उसको कभी दिशा नहीं मिलती और अंत में अपना नुकसान कर लेती है। ओके, तो मैनेजर लाइब्रेरी एज ए संस्था करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो लाइब्रेरी संस्था का जब हम जिक्र करते हैं, ओके, तो लाइब्रेरी इसका लाइब्रेरियन होता है। ओके, उसको हम मैनेज कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, प्ले रोल एज ए मैनेजर, मैनेज ऑल द थिंग्स, functions which are going in the libraries। ओके, तो वो कौन से फंक्शन है जो लाइब्रेरी में चलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला तो एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन में क्या क्या होता है आप सभी को पता है। फिर बाद में प्रोसेसिंग, ओके, फिर बाद में सर्कुलेशन, और फिर बाद में रेफरेंस, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन,
और पीरियोडिकल्स वगैरह। तो ये सभी और इसके अलावा और भी फंक्शन लाइब्रेरी में होते हैं, लेकिन ये मेजर फंक्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। लाइब्रेरी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, and librarian play as a role manager and manage all the things and function in the library. What is the duty of librarian as a manager? To manage all kinds of the things which are going on in the library. सभी प्रकार की जो थिंग्स होती है, एक्शन होती है लाइब्रेरी में, सभी को मैनेज करने का काम लाइब्रेरियन करते हैं एज ए लाइब्रेरियन। तो इसीलिए लाइब्रेरियन को मैनेजर भी कहा जाता है। जब हम मैनेजमेंट स्किल एक्वायर करेंगे तब अच्छी तरह से लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी एक संस्था होती है और संस्था का मैनेजमेंट एज ए मैनेजर, एज ए इंचार्ज हमें आना चाहिए, स्किल हमें एक्वायर होना चाहिए। तो किस तरह का ये स्किल होता है? तो एक्विजिशन, यानी कि यहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ बुक कैन एक्वायर by the different types of vendors. So this is called the purchase process. Placing the order, acquire the order, all these things are come under this function. Then processing, after purchasing, after acquiring the books, we can process all kinds of the books. And we will give the labels, names and other things, paste the pocket at the end of the books, then issue return slip, we also paste there. All these processing things are come in the circulation processing section and processing function. In circulation, after process, book should be kept in the shelf and it will be ready to issue and return, and issue and return process is going on in this section, circulation section. And reference, all the reference book are kept in the reference section. Cataloging, book are catalogued. After processing, book are classified after processing, and then all the books keep should be ready for the circulation, means for the issue and returns. So in this way, two and more than two functions are going on or carried on in the library. So it is need to manage all the functions skillfully. So that's why librarian play as an important role as a manager in the library. And when librarian play important role as a manager, at that time he should have manager skill, management skill. If we don't have management skill, managerial skill, then problem will become in front of us. जब हमें मैनेजमेंट का स्किल नहीं होता हमें, या हमें मैनेजमेंट नहीं आता लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी चलाने में हमें दिक्कत हो सकती है। लाइब्रेरी का जो फंक्शन है वो रुक सकता है, लाइब्रेरी का जो फंक्शन है अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। यदि एज ए ड्राइवर जब आप गाड़ी चलाते हो, आपने गाड़ी सीखी होती है तो अच्छी तरह से आप गाड़ी चला लेते हो, और यदि गाड़ी आपने सीखी नहीं होती तो आप धीरे धीरे गाड़ी चलाते हो, विदाउट फॉलोइंग द रूल आप गाड़ी चलाते हो, और कभी कभी आपसे बड़ी मिस्टेक भी हो जाती है, तभी आप गाड़ी चलाते हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो इस तरह से लाइब्रेरियन एज अ मैनेजर मैनेज ऑल दिस थिंग्स एंड फंक्शन। इसमें क्या होता है, यही काम आपको लाइब्रेरियन करके करना पड़ता है लाइब्रेरी में। ये तो आपको एग्ज़ाम में भी इसका उपयोग होगा ही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका उपयोग होने वाला है। किस तरह से हम लाइब्रेरी मैनेज करते हैं एज अ मैनेजर, एज अ लाइब्रेरियन, ये सभी बातें हमको यहाँ पर पता होना ज़रूरी होता है।
So being able to think ahead, how should be manager there? Being think ahead. Suppose the problem will become, and people, those who are working in the library as a staff, they will think about that, but manager should be think beyond that, all the staff. तो मैनेजर की सोच सभी स्टाफ से अलग होनी चाहिए। जो सभी स्टाफ को लगता है, ऐसा मुझे भी लगता है, ऐसा मैनेजर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इन्फीरियर मतलब जो जूनियर स्टाफ होता है लाइब्रेरी में, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है एज ए लाइब्रेरियन करके, और जब कोई प्रॉब्लम लाइब्रेरी में आता है तो लाइब्रेरियन करके वह हमें सॉल्व करना होता है। और मीटिंग में ऐसा होता है कि हम उस पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, सभी लोग अपने अपने राय देते हैं। मैनेजर वहाँ पे क्या करता है, यदि जूनियर स्टाफ की सुन के वह अपना काम चलाएगा तो काम नहीं चलने वाला है, ये किसी भी संस्था में संभव नहीं होता है। मैनेजर ने सबकी सुनना चाहिए, लेकिन अपनी मन की करना चाहिए जो उसे सही लगे, भले उसमें रिस्क क्यों ना हो, लेकिन जो उसे सही लगे, जो हमें सही लगे एज ए मैनेजर के, कि वही बात हमने करनी चाहिए। और फिर अंत में हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ओके, एज ए मैनेजर करके, और उसके अच्छे परिणाम भी हमें मिलते हैं। रिस्क लेना मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम रिस्क लेने से डरते हैं, यदि ऐसा हम करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा, ऐसे हमें सोचना नहीं है। जो सोचता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो सोचता नहीं है। कुछ डिसीजन हमें सोच समझ कर लेनी चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, अदरवाइज टाइम विल बी पास देयर, सिचुएशन विल बी लेफ्ट फ्रॉम आवर हाउस हैंड, एंड द प्रॉब्लम विल बी फिनिश देयर, ओके। तो इस तरह से बात हो सकती है, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते करते रह जाता है, फिर हमारा नुकसान हो जाता है। यदि नाव का एग्जांपल हमने दिया, नाव पे सपोज कैप्टन है और सभी लोग चिल्ला रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन एज अ कैप्टन करके उसे जो एक्सपीरियंस है 10 साल का 20 साल का, उसका उसने उपयोग करना जरूरी है। और यदि वह अपना दिमाग शांत रखता है और थिंक बियॉन्ड ऑल द पीपल्स के अलावा अलग विचारधारा रखता है, विचार करता है, डिसीजन लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी नाव को वह अपने किनारे लेके आता है, और फिर लोग उसको धन्यवाद देते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं। अच्छा हुआ तुमने हमारी बात सुनी नहीं तो वरना हम कभी नहीं बच पाते, अपनी जान गंवा देते। आपने सही डिसीजन लिया सही टाइम में, तो ये इम्पोर्टेंट होता है एज ए मैनेजर करके। जैसे कि नाव संकट में होती है तब कैप्टन को ही सही डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, भले ही लोग कितने क्यों ना चिल्लाए, कितने क्यों ना हमें राय दे, सजेशन दे, उन पर हमें निर्भर नहीं रहना है, ओके। तो मैनेजर किस तरह का होना चाहिए? बीइंग एबल टू थिंक अहेड, वह अलग विचारधारा का होना चाहिए, अलग विचार करने वाला होना चाहिए। सब जैसे विचार करते वैसे विचार नहीं करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस अदर्स एंड मी, ये हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं होता। Ability forecast futures environmental trends affecting the organization। जब हम मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन करके यहाँ पर बात करते हैं एज मैनेजर करके, तब हम किसी पर्टिकुलर संस्था के बारे में बात नहीं करते, तो ये सभी संस्था को लागू होता है। संस्था जहाँ पर आती है वहाँ पर चीफ होता है,
बॉस होता है, ओनर होता है, तो वह दूसरा कोई नहीं बल्कि मैनेजर ही होता है। और मैनेजर के स्किल उसमें होना ज़रूरी होता है। यदि मैनेजरियल स्किल उसमें नहीं है तो संस्था चल नहीं सकती। तो दूसरा एबिलिटी उसमें क्या होना चाहिए, फोरकास्ट फ्यूचर्स। ओके, वर्तमान में तो किसी भी प्रकार की संस्था अच्छी चल रही होती है, लेकिन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस समय हमारी संस्था न गड़बड़ाते हुए किस तरह से अच्छी तरह से फंक्शन कर सकती है, यह दूरदृष्टिकोण मैनेजर के पास होना चाहिए। फोरकास्ट फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, कोरोना के पहले बहुत सारे बिजनेस अच्छी तरह से चल रहे थे, संस्थाएं, कंपनी अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, सभी प्रकार के लोग घर बैठे और सभी प्रकार के जो काम काज कार्य फंक्शन सभी बंद हो गए। और इस सिचुएशन में कंपनी गड़बड़ाने लगी, घाटे में जाने लगी। तो बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ गई। इस कोरोना की सिचुएशन में उनका लॉस हो गया इकोनॉमिकल, और वो कभी फिर से अपनी पैरों पे खड़ी नहीं हुई। लेकिन कुछ कंपनी, कुछ संस्था, कुछ इंडस्ट्री के मैनेजर बहुत स्ट्रांग थे, फोरकास्ट थे, फ्यूचर के बारे में सोचने वाले थे, दूरदृष्टिकोण वाले थे। उन्होंने कुछ ऐसे प्लानिंग की उस पीरियड में, 2 साल के पीरियड में उनकी कंपनी कभी घटी नहीं, उनकी कंपनी कभी गड़बड़ाई नहीं, उनकी कंपनी कभी घाटे में गई नहीं। उनकी कंपनी अच्छी और स्मूथली चलती रही। भले थोड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन हद से ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया मैनेजर ने। और आज वो कंपनी इतना बड़ा संकट को झेलने के बाद भी अच्छी तरह से चल रही है, मुनाफे में चल रही है, बेनिफिट में चल रही है। तो एक किसके दम पर ये संभव होता है, किसके दम पर ये संभव हुआ है, मैनेजर के दम पर ये संभव हुआ है। जब मैनेजर संस्था का अच्छा होता है, कंपनी का अच्छा होता है, तो कितनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए, कितना भी कोई बड़ा संकट ना आए, तो मैनेजर उसको पार करा लेते हैं। ओके, तो इसलिए एक एबिलिटी मैनेजर में होनी चाहिए, फोरकास्ट फ्यूचर, दूरदृष्टिकोण होना चाहिए कि कौन से ट्रेंड्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, संकट में या बिना संकट में, दोनों के बारे में भी उसकी तैयारी होनी चाहिए। एबिलिटी टू स्टेट organization objective. So it is necessary to keep the goal of objective of any kinds of organization. If we don't keep the set of objective of organization, then what will problem will come, any kinds of organization cannot be run effectively. कोई भी और किसी भी प्रकार की संस्था बिना ऑब्जेक्टिव के चल नहीं सकती। तो ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक समंदर में नाव है और बहुत सारा अंधकार समंदर में हो गया है, लेकिन नाव को और जो कैप्टन है नाव का, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो किनारे पे जो लाइट हाउस होता है, दीप स्तंभ उसे हम बोलते हैं, तो वह नाव को दिशा देता है कि इस दिशा में आपको आना है। तो कैप्टन उस दिशा दर्शक को देखकर अपनी नाव उस दिशा में ले जाता है। तो यहाँ पर लाइट हाउस जो रोल प्ले करता है वह ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले करता है, और कैप्टन यह रोल मैनेजर का रोल प्ले करता है, और जो नाव है वह संस्था, कंपनी, इंडस्ट्री या लाइब्रेरी का रोल प्ले करता है। तो इस तरह से यहाँ पर संस्था जितनी इम्पोर्टेंट है उतना मैनेजर भी इम्पोर्टेंट है,
और मैनेजर और संस्था जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसके ऑब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, तो यदि किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी ऑब्जेक्टिव यदि सेट नहीं है, डिसाइड नहीं है, तो वह संस्था भटक सकती है अपने मार्ग से, अपने राह से। उसे क्या करना है ये उसे समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी सेट होना जरूरी होता है, और मैनेजर ये सेट करता है उसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। Ability to choose strategies that will help in attaining these objectives with respect to future trends, and managers are expected to acquire skill to interact with intermediate planning systems such as using computers. Okay, so it is easy to set the goal, but it is not easy to achieve the goal. Okay, सेट गोल करना या ऑब्जेक्टिव सेट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी मैनेजर उसे कर सकता है, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करना एक बड़ी बात होती है। क्योंकि हम बहुत सारी बातें तय कर सकते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उसे हासिल करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारी एंड्योरेंस पावर्स लगती है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव तो सेट हो जाते हैं, लेकिन उसे हासिल करने का भी स्किल मैनेजर में होना जरूरी होता है। ओके, जैसे कि दो टीम के बीच सामना हो रहा है, और जो टीम के कैप्टन है उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, हमें ये करना है, ये करना नहीं है सामना के बीच, उस पर्टिकुलर सामना के लिए, और उसी हिसाब से वह अपनी रणनीति बनाते हैं। लेकिन अंत में जिस टीम का कैप्टन अच्छा है और जिसने जो गोल सेट किए होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, जो उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं, जिस स्किल से हासिल करने का प्रयास करते हैं, और यदि उस कैप्टन ने उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया, तो वह उसमें बेस्ट कैप्टन के रूप में उभर कर आता है और अपनी टीम को विजय प्राप्त कर देता है। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करना तो आसान होता है, दोनों टीम के थ्रू ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, लेकिन जो मैनेजर होते हैं वह ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हासिल करते हैं अपनी टीम का यूज करके, यह उन पर डिपेंड होता है। और जो कैप्टन यह ऑब्जेक्टिव हासिल करता है उसको ही विजय प्राप्त होता है, उसको ही सक्सेस मिलता है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में भी यह ऐसा ही होता है। तो इस तरह से ऑल दिस थिंग्स शुड बी with the managers, and then he will become the successful manager by acquiring the planning skill. Okay, then after that organization skill is most important. Organization skill is nothing but the organization. Okay, so organization is a noun and organize is a verb. When we organize as organizer the organization, then it is called the organize skill. जब हम ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजर करके जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन स्किल कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन करना मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, उस संस्था को किस तरह से चलाना है, किस दिशा में चलाना है, किस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, किस फंक्शन को कैरी ऑन करना है, स्टाफ जो होते हैं उसमें उनके साथ कैसे काम करना है टीम वर्क के साथ, और जो आउटपुट है वो कैसे हासिल करना है, ये सभी बातें ऑर्गेनाइजेशन स्किल में
होती है या आती है। ओके, सो एज यू हैव सीन प्लानिंग स्पेसिफिक फ्यूचर्स कोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो द प्लानिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन means organizing and planning is not different thing from to each others. Okay, it is decided in which direction organization is going on। तो किस दिशा में ऑर्गेनाइजेशन जा रही है और ऑर्गेनाइजेशन को जाना है, यह डिसाइड करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना। और प्लानिंग में भी यही सेम होता है, किस दिशा में हमें ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना है, और कैप्टन भी यही करता है किस दिशा में नाव को हमें ले जाना है ताकि हम किनारे पे सही सलामत जा सके। तो सेम मैनेजर भी यही करता है, किस दिशा में फ्यूचर में वर्तमान में हमें जाना है ताकि हम अपना जो गोल है सेट किया हुआ वो अचीव कर सके, ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके और हमारी संस्था को कमर्शियल हो तो बेनिफिट प्राप्त कर सके। इस तरह से मैनेजर सोचता है एज ऑर्गेनाइजर करके। वाइल प्लानिंग स्पेसिफिक व्हाट, क्या करना चाहिए, विल बी अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हेन, कब करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफिक हु विल अचीव, कौन अचीव कर सकता है, किस टीम के पास इतनी कैपेबिलिटी है, कौन बंदा है, कौन स्टाफ है ये काम कर सकता है, व्हाट एंड हाउ इट विल बी अचीव, कैसे और क्यों और कब ये हासिल कर सकता है। तो ये सभी बातें एज अ प्लानर, एज ऑर्गेनाइजर, मैनेजर करता है। तो ये स्किल भी उसमें होना जरूरी होता है। तो आगे का जो स्किल होता है कंट्रोलिंग स्किल। ओके, तो कंट्रोल यानी कि क्या, कंट्रोल करना मतलब क्या करना, नियंत्रण पाना, नियंत्रण रखना, इसे कंट्रोलिंग कहा जाता है। स्किल भी हमें आना चाहिए, स्किल में भी हम एक्सपर्ट होने चाहिए और एज ए लाइब्रेरियन मैनेजर करके स्किल हमें होना जरूरी होता है। ओके, यहाँ पर एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, किसी भी प्रकार की व्हीकल हो। ओके, तो यहाँ पर गाड़ी होती है और ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, लेकिन स्पीड में कैसे चलाना, किस स्पीड में चलाना, ये ड्राइवर पर निर्भर होता है। और स्पीड के जरिए गाड़ी पर कैसे कंट्रोल रखना, ये भी ड्राइवर पर निर्भर होता है। तो ड्राइवर अलग अलग स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन गाड़ी पर नियंत्रण रखना उसका काम होता है। यदि गाड़ी से उसका नियंत्रण खो जाता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो गाड़ी पर नियंत्रण रखना ड्राइवर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण करता है तभी गाड़ी कंट्रोल में रहती है, और यदि गाड़ी उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, ठीक उसी तरह से संस्था का मैनेजर और संस्था एक गाड़ी होती है, मैनेजर और ड्राइवर होता है। तो एज अ मैनेजर करके संस्था पर कंट्रोल होना जरूरी होता है, ताकि किस दिशा में संस्था को ले जाना है, किस स्पीड से ले जाना है, यह मैनेजर पर निर्भर होता है, मैनेजर तय कर सकता है। ओके, यदि उसने स्पीड से ज़्यादा चलाने की कोशिश की तो उसका कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो जाती, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार के मैनेजर ने भी
कम समय में संस्था को बढ़ाने का प्रयास किया और कुछ उल्टे सीधे निर्णय ले लिए तो उसका कंट्रोल संस्था पर से उड़ जाता है, फिर संस्था का नुकसान हो जाता है और अंत में संस्था बंद पड़ सकती है। तो जिस तरह से ड्राइवर को कंट्रोल स्पीड की दिशा में लेके जाना है, इसके साथ स्पीड पर यदि कंट्रोल है तो गाड़ी सही दिशा में सही स्पीड से चल सकती है। ठीक उसी तरह से एज अ मैनेजर, एज अ लाइब्रेरियन करके किस दिशा में किस स्पीड से संस्था को चलाना है यह मैनेजर तय करता है, ये डिसाइड करता है। और इसके लिए ड्राइवर हो या मैनेजर दोनों को कंट्रोल की ज़रूरत होती है और ये स्किल की ज़रूरत होती है। जब ये स्किल उसमें होते हैं ड्राइवर या मैनेजर में, तब वे संस्था पर या व्हीकल पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर। ओके, द स्किल ऑफ कंट्रोलिंग कंसिस्ट of action and decision which managers undertake to ensure that the actual result are consistent with the desired result. Okay, जब एज ए मैनेजर करके संस्था पर कंट्रोल होता है तो किस प्रकार की एक्शन, फंक्शन और डिसीजन मैनेजर करके संस्था में लेने हैं, ये बात उसकी समझ में आती है और फिर वह सही एक्शन लेता है, सही डिसीजन लेता है और सही फंक्शन कैरी ऑन करता है। इन द प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट सेट्स ऑब्जेक्टिव एंड विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन। तो एज अ मैनेजर करके प्लानिंग डिजाइन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और फिर वट एवर गोल आर सेट बाय द मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे कैन अचीव देयर। तो वो सभी प्रकार की गोल्स, ऑब्जेक्टिव वहाँ पर हासिल की जाती है। ओके, तो इस तरह से कंट्रोलिंग स्किल होना भी ज़रूरी होता है मैनेजर में। और लास्ट में डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट है। तो एज ए मैनेजर करके किसी भी प्रकार की संस्था में एज ए मैनेजर करके उसको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। इफ manager is not able to take the decisions in any situation then problem will become there। किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, यदि मैनेजर को डिसीजन मेकिंग नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो मैनेजर के डिसीजन प्रेजेंट में तो अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी सही दिशा में होनी चाहिए, तभी संस्था अच्छी तरह से रन कर सकती है। और जो मैनेजर ऐसा करता है, जिसके पास दूरदृष्टि है, वह सही दिशा में डिसीजन लेते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग स्किल आर प्रेजेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, होनी चाहिए और कौन से समय किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, ये मैनेजर पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे एयरप्लेन के। जब एयरप्लेन क्रैश होता है या क्रैश होने की संभावना होती है, तब वह
आकाश में ही होता है, और फिर ऊपर से नीचे प्लेन को किस तरह से लैंडिंग किया जाए, और जो पैसेंजर एयरप्लेन में बैठे हैं उनकी जान कैसे बचाई जाए, यह उस कैप्टन पर निर्भर होता है। उस कैप्टन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है। ओके, तो उसके पास क्या होना जरूरी होता है, डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे ऑप्शन कंट्रोलिंग रूम से उसे दिए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन जो एयरप्लेन में है और उसे सामने दिखाई दे रही है, और उसका जो एक्सपीरियंस है, इन सबको मिलाकर वो किस तरह से सही डिसीजन लेता है, उस पर इस घटना का सक्सेस डिपेंड रहता है। यदि मैनेजर अच्छा है, एक्सपीरियंस होल्डर है, और अकॉर्डिंग सिचुएशन ही विल टेक डिसीजन इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेंट, बिना घबराए परिस्थिति अनुरूप जो डिसीजन लेता है, तो वह अपने काम में कामयाब होता है। तो जब कैप्टन को जो सही लगता है वह वो डिसीजन लेके एयरप्लेन को सही दिशा में और सही जगह पे लैंडिंग करता है, तो इसकी वजह से सभी जो पैसेंजर होते हैं उनकी जान बचती है, और फिर बाद में जो पैसेंजर होते हैं वो भी उनको धन्यवाद देते हैं कैप्टन को, और जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो भी धन्यवाद देते हैं, और पूरा देश ऐसी सिचुएशन को देखता है तो वो भी उनको धन्यवाद देते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है हरक्यूलस सिचुएशन में, ये यहाँ पर हमने देखा। एक उदाहरण के तौर पर संस्था में भी इस प्रकार के डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ही हमने उदाहरण देकर बताया। यदि संस्था संकट में है तो उसे किस तरह से संकट से बचाया जा सकता है, तो मैनेजर सही डिसीजन लेकर ये कर सकता है, अपनी संस्था को बचा सकता है। और यदि संस्था अच्छी तरह से चल रही है लेकिन कुछ मैनेजर रॉन्ग डिसीजन लेकर अपनी संस्था को संकट में डाल सकते हैं, संस्था को घाटा पहुंचा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो डिसीजन पे ये डिपेंड होता है मैनेजर किस तरह का डिसीजन लेता है। सही डिसीजन लेता है तो सक्सेस मिलता है, और रॉन्ग डिसीजन मैनेजर लेता है तो लॉस होता है। तो मैनेजर के पास सही डिसीजन लेने का सही तरीका होना चाहिए, इसलिए डिसीजन स्किल इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रोवाइड ऑल द अदर एरियाज सच एज ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीन स्किल मिलाकर सही डिसीजन लिया जा सकता है, और डिसीजन मेकिंग स्किल एक्वायर होता है। विल अप्रिशिएट द सिंपल डिफरेंस बिटवीन मैनेजर नॉन मैनेजर इन so far as a managers make all the decision at all level in the organization। तो मैनेजर और नॉन मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है सही समय पर, सही दिशा में, सही जगह पे, सही समय में सही निर्णय लेना, यह मैनेजर का स्किल होता है, जो नॉन मैनेजर में नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से मैनेजर में इनबिल्ट ये स्किल होता है, और वह सही जगह पे, सही दिशा में और सही समय पर सही डिसीजन लेता है, तो उसको ही हम सक्सेसफुल मैनेजर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ओके, तो यहाँ पर हम और भी उदाहरण दे सकते हैं कि लीडर सभी लोग क्यों नहीं बनते, मैनेजर सभी लोग क्यों नहीं बनते, कंपनी का सीईओ जो होते हैं वो सभी लोग क्यों नहीं बनते, सुंदर पिचाई ही क्यों गूगल के सीईओ होते हैं। ओके, उनमें ऐसा क्या रहा होगा कि उनको देखकर
गूगल ने उनको सीईओ बना दिया। तो आप सुंदर पिचई की कार्य पद्धति, कार्यशैली का स्टडी कर सकते हैं। और गूगल पर भी उनके बहुत सारे वीडियोज़ है और डिसीजन मेकिंग के, और जो उन्होंने काम किया है गूगल में, उनके कार्य यूट्यूब पर दिए हुए वीडियो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद आपके समझ में आएगा कि अच्छा और सच्चा मैनेजर कैसे होता है, वो किस तरह से अपनी कंपनी को आगे ले जाता है। यह मैनेजर का अच्छा स्किल होता है और उसमें सबसे बड़ा स्किल कौन सा होता है? डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से संस्था किसी भी प्रकार की हो और उसमें मैनेजर होता ही है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से एज ए लाइब्रेरियन करके जब हम मैनेजर का रोल प्ले करते हैं तो हमारे अंदर भी डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी होता है। तो हम डिसीजन मेकिंग क्यों कैसे कर सकते हैं लाइब्रेरियन करके? यदि हमारे लाइब्रेरी में यूजर कम है तो हमें डिसीजन लेना है किस तरह से वे बढ़ सकते हैं। कलेक्शन डेवलप नहीं हुआ तो हमें डिसीजन लेना किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कलेक्शन। सर्विस इफेक्टिव नहीं हो रही है तो किस तरह से इफेक्टिव हो सकती है, डिसीजन लेने हैं। ओके, लाइब्रेरी का कार्य अच्छी तरह से नहीं चल रहा है तो किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं, ये सभी बातें हम कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है लास्ट में। So for decades, LIS professionals have been creativity managing the information resource on their firm, behaving attorney and client. तो एज ए मैनेजर करके हमें सभी प्रकार के स्किल एक्वायर करना जरूरी होता है। जो ऊपर हमने चर्चा की उस पर चर्चा की, तो सभी प्रकार के कम ज़्यादा स्किल हमें होना ज़रूरी होता है। जो स्किल हम में है वो अच्छी बात है, जो नहीं है वो एक्वायर करना ज़रूरी होता है। तभी हम अच्छी तरह से लाइब्रेरियन और एज ए मैनेजर का रोल प्ले कर सकते हैं। संस्था को चलाना इतनी आसान बात नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ लाइक प्ले रोल एज ए ड्राइवर ऑफ व्हीकल, कैप्टन ऑफ शिप और कैप्टन ऑफ प्लेन। इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। जितना कठिन प्लेन चलाना है, हमें लगता है शिप चलाना है समंदर में, उतना ही कठिन संस्था को चलाना होता है। तो जो गुण प्लेन कैप्टन के पास होता है, शिप कैप्टन के पास होता है, वही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तभी हम अच्छी तरह से संस्था चला सकते हैं। और कौन से स्किल होने चाहिए ये हमने यहाँ पर देखा। टेक्निकल स्किल, लीडिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, डिजिटलाइज मैनेजमेंट स्किल, ऑल मैनेजमेंट स्किल, यूजर सेटिस्फैक्शन मैनेजर, LIS प्रोफेशनल्स, ओके, मैनेजमेंट स्किल, नॉलेज मैनेजमेंट स्किल, यूजर सेटिस्फैक्शन, ये सभी प्रकार के जो स्किल होते हैं वह एज अ लाइब्रेरियन करके हमारे अंदर होने चाहिए। तभी हम सही दिशा में सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज अ लाइब्रेरी करके वह अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग स्किल के बारे में हमने चर्चा की। So we have been discussed on what kind of the professional skill we should have as a librarian, as a manager of library. Okay, after that we should have a professional ethics. Okay, as a librarian, as a manager of library. So first of all we will try to understand the meaning of ethics. The word ethics is derived from the Greek word ethikos, meaning custom or character.
Okay, so ethics is nothing but the character or custom, and when we think about the character should be positive, character should be heroic effort should be done by the character, and then he become the hero. Okay, किसी भी कैरेक्टर के द्वारा जब हीरोइक एफर्ट किए जाते हैं तो उन्हें हम हीरो कहते हैं। और एथिक्स का मतलब यही होता है, जब हम किसी फिल्म को देखते हैं तो उसमें दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो एंड विलन। ओके, तो इसका एक सीधा मीनिंग हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। जब फिल्म देखते हैं हम फिल्म, ओके, तो फिल्म में दो ही प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, सभी को डिवाइड किया जाए तो एक हीरो, ओके, और एक विलन। ओके, दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। तो हीरो ए हीरोइक एफर्ट करते हैं, इसलिए उनको हीरो कहते हैं। और विलन जो होते हैं नॉन हीरोइक, जिसे हम बोलते हैं, ओके, और एंटी हीरो का रोल प्ले करते हैं। एफर्ट करते हैं तो उसको हम विलन कहते हैं। ओके, तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। हीरो को हम अच्छा समझते हैं और सबके लिए काम करता है, सबका अच्छा सोचता है, अच्छा और सच्चा होता है। लेकिन हीरो के अगेंस्ट विलन होता है, वह हमेशा बुरा काम करता है, बुरा और बुरे काम करता है, तो इसीलिए उसको विलन कहा जाता है और एंटी हीरो कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये कहने का क्या मतलब और क्या उद्देश्य, हमें इथिक्स और नॉन इथिक्स दोनों में अंतर समझना है, दोनों में फर्क क्या होता है ये समझना है। इसीलिए हीरो और विलन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया। ठीक उसी तरह से प्रोफेशन में इथिक्स एंड नॉन इथिक्स के दो प्रकार के लोग होते हैं। हीरोइक एफर्ट करने वाले होते हैं और इथिक्स यानी कि जो गुड करने वाले होते हैं, बेस्ट गुड। ओके, और नॉन इथिक्स ethics are all the good things or good efforts. Okay, we can call it ethics. Non ethics मतलब bad things। ethics में क्या अच्छा क्या बुरा ये हमें समझ में आना चाहिए। उसे सब कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, सत विवेक बुद्धि कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। सत विवेक बुद्धि क्या अच्छा क्या बुरा, इसकी जारी होना, इसका ज्ञान होना, ये ज्ञात होना, उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इथिक्स भी हमें ये सिखाता है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग एंड व्हाट इज़ द बैड थिंग। ओके, तो जब हम फिल्म देखते हैं तो कौन अच्छा कौन बुरा ये हमें समझ में आता है। हीरो अच्छे काम कर रहा है, अच्छा होता है, अच्छे काम करता है, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हीरो और हम में कोई अंतर नहीं है, हम ही हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं ऐसा हम महसूस करते हैं और हीरो के साथ पूरा हम एडॉप्ट हो जाते हैं, एक रूप समरूप हो जाते हैं। ओके, और ये फिल्म हीरो की नहीं बल्कि हमारी चल रही है ऐसा हमें अनुभव होने लगता है। ओके, मतलब पूरी फिल्म में हम घुस जाते हैं और जो अच्छा काम करता है वही हमें पसंद आता है, क्योंकि हम में भी एक हीरोइक एफर्ट होता है और हर एक में भी हीरोइक एफर्ट होते हैं और हीरो होता है छुपा हुआ। लेकिन जो विलन होता है, किसी भी प्रकार का आदमी हो,
किसी को भी विलन पसंद नहीं आता। ओके, उसका काम किसी को भी पसंद नहीं आता, भले ही अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी। वास्तव में जो हम देखते हैं वह नाटक होता है, वह अभिनय होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वह वास्तव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभिनय होने के बावजूद भी, नाटक होने के बावजूद भी, जो अच्छा काम करता है उसे हम अच्छा कहते हैं, जो बुरा काम करता है उसे हम बुरा कहते हैं। तो इसका मतलब हर एक आदमी में अच्छा करने का एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि उसे बुरा बनना पड़ता है। ओके, उसे गुनहगार बनना पड़ता है। तो हर एक सिचुएशन में यदि हम अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं, अपना अच्छा प्रयास नहीं छोड़ते हैं, अच्छा बनना नहीं छोड़ते, अच्छा बिहेवियर करना नहीं छोड़ते, तो हम हमेशा हीरो बनकर रह सकते हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना। तो प्रोफेशनल के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे हमने फिल्म के बारे में देखा, तो प्रोफेशनल जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल और वहाँ पर इथिक्स की बात आती है, तो इसका क्या मतलब होता है? ओके, तो इसका मतलब कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर एज अ पर्सन करके हम लेते हैं। ओके, और पर्सन में देखा जाए तो दोनों कॉम्बिनेशन, गुड और बैड, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, प्रोफेशनल इथिक्स, इथिक्स का ग्रीक के भाषा में कैरेक्टर ऐसा अर्थबोध होता है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। तो कैरेक्टर यानी कि व्यक्ति, और जब हम किसी भी व्यक्ति की ओर देखते हैं या व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, तो उसमें अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के गुण होते हैं। तो इथिक्स का मतलब भी वही होता है, अच्छा या बुरा, ये समझने की जो पात्रता हम में आती है उसको हम इथिक्स कहते हैं। ओके, तो प्रोफेशनल इथिक्स जब ये शब्द यूज किया जाता है, कैरेक्टर इथिक्स जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, कैरेक्टर्स के इथिक्स क्या होते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, वैसे ही प्रोफेशनल के इथिक्स के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, ये समझने की जो हमारी पात्रता तैयार होती है, एबिलिटी होती है, उसको इथिक्स कहा जाता है। और प्रोफेशनल में क्या अच्छा क्या बुरा, ये हमें ज्ञात होता है या होना जरूरी होता है। ओके, तभी हम अपने प्रोफेशन को न्याय दे सकते हैं, तभी हम अपने प्रोफेशन से लॉयल रह सकते हैं। ओके, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो वो कैसे डॉक्टर बनता है, क्यों डॉक्टर बनता है, उसका एक अपना उद्देश्य होता है। बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की सेवा करनी पसंद होती है, लोगों के कांटेक्ट में रहना पसंद होता है। और बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं कि उनको पैसे कमाने होते हैं, एक बड़ा नाम काम करना होता है, इसलिए वो डॉक्टर बनते हैं। अलग, हर एक का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। लेकिन डॉक्टर बनते समय जब आप एजुकेशन लेते हो, तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल एथिक्स सिखाया जाता है। आप इस प्रोफेशन में प्रवेश कर रहे हो, आ रहे हो, लेकिन इसमें क्या सही और क्या गलत, इसका ज्ञान होना आपको ज़रूरी होता है। ओके, और यदि यही इथिक्स आप जब डॉक्टर बन जाते हो और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज करते हो, तो आप प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हो या कर रहे हो, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करता है, और दूसरा डॉक्टर है जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करता है।
और जो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करता है उसके पास कोई भी पेशेंट आता है तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है, सही डिसीजन लेता है, सही गाइडेंस करता है, किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन उसे नहीं देता, और जितना खर्चा लगता है उतना ही उसे बताता है, ज़्यादा पैसे नहीं लेता, पेशेंट को घुमा फिरा कर बातें नहीं करता, उसका मिसगाइड नहीं करता, उससे पैसे लूटमार नहीं करता, और फिर उसकी फ़ी भी अफोर्डेबल होती है। ओके, तो इस तरह से सभी जो प्रोफेशनल एथिक्स वो फॉलो करता है, पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कैसे बोलना चाहिए, ओके, सिचुएशन की कैसे ध्यान में रखना चाहिए पेशेंट की। और दूसरा जो डॉक्टर होता है वो कभी पेशेंट का विचार नहीं करता, प्रोफेशनल जो एथिक्स है वो फॉलो नहीं करता, वो हमेशा पेशेंट को घुमा फिरा कर बात करता है, चढ़ा बढ़ा कर बताता है, और पेशेंट को घबरा देता है, और फिर जहाँ पर 500 रुपये फ़ी लेनी होगी उसे वहाँ पर 5,000 रुपये फीस लेता है, जहाँ पर 5,000 वहाँ पर 50,000, और 50,000 50 लाख, ओके 5 लाख। इस तरह से वह हमेशा पेशेंट को लूटते रहता है। तो यहाँ पर आपको दो कैरेक्टर हमने बताए, दो डॉक्टर के एग्जांपल दिए। यहाँ पर पहला वाला डॉक्टर प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो कर रहा है, जो सही है, अच्छा है, वह वो कर रहा है। लेकिन जो नहीं करना चाहिए, दूसरा डॉक्टर जो नहीं करना चाहिए वह वो कर रहा है, यानी कि वो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, और यदि दोनों डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है जो बहुत गरीब होता है, तो पहला वाला डॉक्टर ये कभी नहीं विचार करता उसके पास पैसे है या नहीं, पहले उसको क्या ज़रूरी है, तो पहले उसको इलाज की ज़रूरत है, तो पहले उसका इलाज करता है, फिर बाद में पैसों का विचार करता है, फिर पैसों के बारे में सोचता है। ओके, लेकिन दूसरा वाला डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, चाहे वह मौत की दर पर हो और दरवाजे पर हो, लेकिन उसको उसकी कुछ पड़ी नहीं है, वो पैसों के बारे में सोचता है। पहले वह पेशेंट को कहता है या रिलेटिव्स को कहता है कि आप इतनी इतनी अमाउंट पहले भर दो, फिर मैं बाद में उसका इलाज करूँगा। पैसे के बिना वह इलाज नहीं करता, भले वह आदमी गरीब हो। तो ये दोनों में जो अंतर है, तो यह प्रोफेशनल एथिक्स हमें बताता है व्हाट इज़ गुड थिंग एंड व्हाट इज़ बैड थिंग, व्हाट आर द गुड थिंग एंड व्हाट आर द बैड थिंग। इट इज़ रिकॉग्नाइज दिस, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, तो ये हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो उस तरह से हमारा कैरेक्टर बनता है, हम किस तरह के एथिक्स को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज़ रॉन्ग और वेदर इट इज़ राइट। ओके, so the Webster dictionary define ethics as the discipline dealing with what is good and bad or right and wrong, with morality, duty and obligations. So on the basis of morality, we can decide what is the wrong and what is the right, what is the bad and what is the good. तो अपनी जो मोरालिटी होती है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत। ओके, तो जो दो उदाहरण हमने यहाँ पर बताए डॉक्टर के, इससे आपको समझ में आता है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर बुरा है, कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर रॉन्ग है। तो जैसे हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैसे भी सोशल एथिक्स होती है। सोसाइटी में क्या रॉन्ग क्या राइट, क्या गलत क्या सही, ये पहचानने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, तभी हम सोसाइटी में एज अ सोशल ह्यूमन करके अच्छी तरह से जी सकते हैं और रह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना ज़रूरी होता है मोरालिटी के बेस पर। डिफरेंट ऑथर रिसर्चर हाउ डिफाइन द टर्म्स एथिक्स डेफिनेटली, और आपके ऊपर ये बंधन नहीं होता वेदर इट इज यू शुड फॉलो और नॉट फॉलो। ओके, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और
फॉलो नहीं कर सकते। इट इज़ डिपेंड ऑन योर मोरालिटी, यह मोरालिटी का भाग होता है। इसे हम संस्कार बोलते हैं, जिसे हम अपना अतीत बोलते हैं, उसका ही पार्ट होता है। ओके, आपने फॉलो किया नहीं फॉलो किया कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इससे आपका कैरेक्टर तैयार होता है, आपकी इमेज तैयार होती है, आप अच्छे या बुरे ये मैसेज लोगों में जाता है। तो इसलिए जब हम फिल्म देखते हैं तो जो अच्छा काम करते हैं उसे हम अच्छा कहते हैं, उसको हीरो बना देते हैं, और जो बुरा काम करते हैं उसे हम बुरा कहते हैं, उसको विलन बना देते हैं। तो जैसे फिल्म में होता है, नाटक या सीरियल में होता है, ठीक उसी तरह से सोशल लाइफ में, सोसाइटी में भी ऐसे होता है। ओके, और रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा हमारे द्वारा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा काम करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। ओके, मोरालिटी के बेस पर, मोरालिटी यानी मोरल वैल्यू हमें वहाँ पर यूज करने हैं। तो हमारी एजुकेशन में मोरल वैल्यू यानी वैल्यू एजुकेशन क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि उसके पीछे यही उद्देश्य है, क्योंकि हम प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर सके, सोशल एथिक्स को फॉलो कर सके। ओके, वरना हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े बन तो जाते हैं, लेकिन सही या गलत का अंतर जब हमें समझ में नहीं आता, what is the use of your education, what is the use of your earning, what is use of your name and fame? आपका नाम और काम का क्या मतलब रह जाता है जब आपको ये समझ में नहीं आता कि what is the wrong and what is the good, what is the bad, what is the wrong and what is the right? ओके, तो ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, ताकि जब आप सोसाइटी में काम करते हो लोगों के साथ, तो सही के साथ सही आपको करना चाहिए, और सही समय सही डिसीजन लेना जरूरी होता है। मानबर्ग 2000 डिफाइन एथिक्स एज ए थियरीज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या अच्छा क्या बुरा। ओके, उसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। कॉन्शियसनेस मीन इट इज identify whether it is wrong or right, whether it is bad or good. This is kind of intellectual. Okay, so that is called the consciousness. The researcher however define it is critical examination of the standard of good or evil, right or wrong, virtue and vice, field of moral philosophy and conceptions of right and wrong behavior, defining when action are moral and when they are immoral. सो प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स के बारे में हमने जाना। एथिक्स के बारे में एक ही आप बात ध्यान पे रखना, क्या सही और क्या गलत, इसका ज्ञान होना, इसका ज्ञान होना, इसको हम एथिक्स कहते हैं। उसको कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, और साइंस में एथिक्स शब्द यूज होता है, यही फर्क है दोनों में। So professional means a person who has knowledge of some specific field. Professional ethics encompass the personal, organizational, corporate standard of behavior expected of professionals. तो स्टैंडर्ड जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं उसका स्टैंडर्ड हम में होना जरूरी होता है। ओके, यदि डॉक्टर हम बनते हैं तो डॉक्टर के जो स्टैंडर्ड होते हैं, डॉक्टर का बोलना और बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, ये डॉक्टर ने तय करना चाहिए। और यदि एक डॉक्टर हमारे सामने गलत बिहेवियर करता है, गलत बातें करता है, गलत कंडक्ट करता है, तो हमारा ऐसा समझ होता है कि सभी प्रकार के डॉक्टर इस तरह के होते हैं, ऐसा हमारा समझ हो सकता है। तो जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं उस प्रोफेशन का नाम खराब हमें नहीं करना होता है। उस प्रोफेशन को हम कैसे लाइव रख सकते हैं और उसकी जो पॉजिटिविटी है लोगों में कैसे
बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें काम करना ज़रूरी होता है। इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जिस प्रोफेशन में आप काम करते हो उस प्रोफेशन की गरिमा, उस प्रोफेशन की मान सम्मान, उस प्रोफेशन की इज्जत आपको बढ़ानी होती है, ना बल्कि कम करनी होती है। यदि कोई टीचर है तो टीचर के लिए लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट होता है, मान सम्मान होता है। लेकिन यदि कोई टीचर गलत काम करता है तो आप उस प्रोफेशन को बदनाम कर देते हो। ओके, ऐसी सिचुएशन, ऐसे काम समाज में होते हैं कि वो प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के कारनामे हम न्यूज़पेपर में देखते, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हो कुछ गलत बातें कर देते हैं पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। उनका नाम होता है, उनका नेम और फेम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे गलत काम करते हैं। और जब ये लोगों के सामने आता है तो पूरा प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। एक गलत काम करता है लेकिन पूरे लोगों का नाम बदनाम हो जाता है। सभी डॉक्टर इसी प्रकार के होते हैं, इस तरह का मैसेज लोगों में जाता है। तो हम जिस प्रोफेशन में आते हैं, बाय पर्पसफुली या बाय एक्सीडेंटली, तो उस प्रोफेशन में काम करते समय उस प्रोफेशन का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमें खबरदारी लेनी चाहिए। और यदि हम ऐसी खबरदारी लेते हैं तो हमारे प्रोफेशन का नाम सही में बढ़ सकता है। So professional ethics, professionally accepted standard and personal business behavior, value guidance principle. Codes of professional ethics are often established by professional organizations to help guide members in performing their job functions according to sound and consistent ethical principle. तो हर एक सब्जेक्ट होता है, हर एक डिसिप्लिन होती है, हर एक प्रोफेशन होता है। तो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है हर एक प्रोफेशन की, उसके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड रूल, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम बोलते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइन, स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, ये सेट की जाती है और उसके हिसाब से वह प्रोफेशनलिस्ट ने बिहेवियर करनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट होता है। जैसे कि बार एसोसिएशन होता है दिल्ली का, लॉयर की कोड ऑफ कंडक्ट क्या होनी चाहिए वह सेट करता है। और मेडिकल एम्स जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सर्वोच्च अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, वह क्या करती है, डॉक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, एथिक्स क्या होने चाहिए प्रोफेशनल, वह सेट करती है और उसके अकॉर्डिंग सभी डॉक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। और फिर यूजीसी और यूनिवर्सिटी अपेक्स बॉडी होती है एजुकेशन में, वह टीचर प्रोफेसर के जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए वो फॉलो करती है, इथिक्स क्या होने चाहिए प्रोफेशनल वो फॉलो सेट करती है। फिर टीचरों को ये फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से हर एक प्रोफेशन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपेक्स बॉडी होती है, उसको कोड ऑफ कंडक्ट सेट करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग सभी प्रोफेशनल ये फॉलो करते हैं। जैसे टीचर के बारे में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी है, और डॉक्टर के बारे में एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल वगैरह, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी मेडिकल फील्ड में, लॉ फील्ड में इंडियन बार एसोसिएशन है, वो उसका लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट सेट करती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो सभी प्रकार के प्रोफेशनल का कोड ऑफ कंडक्ट सेट करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है, एथिक्स सेट करती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उन सभी प्रोफेशनल को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स is the ethic
ethical norms, value, principle that guide a profession and ethics of decision made within the profession. और ethical norms जो होते हैं, ethical जो वैल्यूज़ या प्रोफेशन प्रिंसिपल जो होते हैं वह एज अ गाइड का रोल प्ले करते हैं और हमारी प्रोफेशन में किस तरह से हम बिहेव कर सकते हैं, किस तरह से हमारा एथिक्स होना ज़रूरी है, किस तरह से हमारा कंडक्ट होना ज़रूरी है, किस तरह से हमारा बर्ताव होना ज़रूरी है, ये सभी तय करने का काम करती है। एज अ गाइड करके इथिकल प्रोफेशनल प्ले रोल करते हैं। ओके, तो लाइब्रेरी के इथिकल प्रोफेशनल क्या है? दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी as being professional, whether it is library student, MLI student, researcher, teacher, professors. Okay, so for them there are some ethical principle are given here, and we should discuss on this. And who has set this kind of the principle we will discuss here. International Federation of Library Association, that is called IFLA, an institute 2007, ethical principle for LIS professionals, librarians and other information worker, ethical principle for LIS professional ने सेट किए हुए है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज़ आवर अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड at international level, which are set some ethical principle that is called the IFLA in 2007, and for whom these ethical principle are compulsory, those people who are working in the field of LIS, means librarians, worker, ethical researcher, student, okay, whoever. So फॉर देम इट इज़ कंपल्सरी टू फॉलो इट, तो सभी को ये फॉलो करना ज़रूरी होता है। और हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल में इथिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। LIS प्रोफेशनल सेव टू ऑल यूजर्स इक्वली इन अकॉर्डेंस विथ मैंडेट एंड लीगल बेसिस। LIS प्रोफेशनल ऑफर हाई क्वालिटी सर्विस टू ऑल यूजर्स। Already we have learned that library never discriminate on the basis of caste, religions, then the rich and poor. Okay, so as being a library professional, we don't have make the difference between the users. So who is our relative, who is not our relative, who is talent, who is not talent. Okay, so we don't think like that. All users should behave like equally. तो सभी प्रकार के यूजर को हमें इक्वल बिहेव करना जरूरी होता है। तो वी डोंट मेक डिफरेंस बिटवीन टू देम, हमें उनमें कोई अंतर नहीं रखना होता है, कोई डिफरेंस नहीं करना होता है। ये पहला एथिक्स यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट होता है। So today we will stop here, remaining part we will take tomorrow.